ladies and gentlemen, guys and girls. Once again, we are here on Eva TV. Now, this time I have got something different for you, and it's not only different, it's unique as well. Okay, so हम लोगों को बचपन से ही मास्टर जी से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों. एंड लेकिन वो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप जिस चीज़ से जितना भागते हो वो चीज़ आपके उतना और पीछे आ जाती है. सो जब हम बड़े हो जाते हैं तो मास्टर जी को हम थोड़े दिन के लिए भूल जाते हैं, बट लेकिन जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आगे जैसे बढ़ते हैं, हमें फिर से एक मास्टर जी की ज़रूरत पड़ती है. एंड ऐसे ही एक मास्टर जी के साथ आज हमें, इनका नाम है मिस्टर मिलिंद मांगले. एंड मिलिंद इज एक्चुअली एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड business coach and master trainer. So master trainer. Okay. And Milind had been in corporate and entrepreneurship both. Milind का जो career है, it was almost close to 2 decades in corporate. He has worked in pharmaceutical industry, and then he moved to his entrepreneurial journey. In nutshell, if you ask me what he does, he's a business coach and a master trainer, and he has trained thousands of professionals and almost 100 companies he has worked with in India and abroad. So, in one sentence, if I tell you what Milind is or who we are going to interact with today, he is one of the most sought after business coach and master trainer in India and abroad. Okay, welcome Milind to the show. Thank you so much. Thanks a lot, Vivek, for inviting me here. It's my honor and privilege to talk to the audience here. So, hello everybody. दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग. अभी जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ना, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ वर्ड है. ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट करनी हो तो उसके आगे स्ट्रैटेजी लगा दो या स्ट्रैटेजिक लगा दो, एंड फिर वो दिमाग का आपका खोपड़ा हो जाएगा, एंड यू लिटरली गेट कंफ्यूज. लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. जैसे हर बीमारी का सलूशन होता है, हर बीमारी का कुछ इलाज होता है, वैसे ही स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के कुछ गुरु हैं, एंड मिलिंद इज वन ऑफ देम. एंड लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम मिलिंद व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग. ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है और कहाँ उड़ती है और कब बैठती है, उसको कैसे इस चिड़िया के पर गिनते हैं? मिलिंद. Thank you very much. First of all, if you think when it comes to strategy means something complicated, then I would say one should attend my workshop. If you attend my workshop, then you'll think it's not complicated. It's something which is very important. See, the reason why people feel it is complicated because many do not have the right understanding of the word strategy. So, before I go to strategic marketing, I would like to talk about, first what is the strategy and what is strategic thinking. Before that, let me tell you something first about marketing. Actually, if you see, I very simplistically, अगर बहुत simple तरीके से उसको explain किया जाए, तो I divide marketing into two parts. The invisible part of marketing and the visible part of marketing. Now, most of the people, if they do not have a formal education or training in marketing, what they say they know marketing is actually only the visible part of marketing, right? For example, जैसे कि आपके promotional activities, schemes, your advertising, all those things, they fall under the visible part of marketing. The more important part of marketing, which comes before the visible part of marketing, is the invisible part of marketing, right? And in this invisible part of marketing lies your strategic marketing part. Now, to understand this, as I said, we need to understand two terms first. One, strategy, and second, what is strategic thinking. पहले हमको ये समझना चाहिए कि strategy क्या है. Strategy मतलब your course of action, in which you anticipate the problems or opportunities. मतलब आप कोई भी रास्ता लेने के पहले उस रास्ते पे क्या रुकावटें आ सकती है, what could be the problems, इसके बारे में पहले से सोचते हो और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो आप पहले से सोच के चलते हो. It may not be a problem, it could be the opportunity. Right. Now let me explain what is strategic thinking.
Strategic thinking means, simply put, thinking big, thinking deep and thinking long. मतलब strategic thinking का मतलब क्या है, राइट? बड़ा सोचना, दूर की सोचना, राइट? और कोई भी चीज में डीपली जाके उसके बारे में मंथन करना. ओके, सो जैसे कि अगर हमें कोई रोड बनानी है तो पहले सिर्फ डामर उठाओ, मशीन उठाओ, रोड बनाना शुरू मत कर दो. पहले समझो कि रोड कहाँ बनानी है, कहाँ से कहाँ तक बनानी है, करेक्ट, और ये आने वाले टाइम पे ये रोड क्या क्या काम कर सकती है. करेक्ट. विवेक, आई थिंक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया. अगर ये रोड का एग्जाम्पल लेते हैं तो रोड बनाने के पहले मुझे ये देखना चाहिए कि वो रोड में जो बना रहा हूँ क्या रुकावटें आ सकती है रास्ते में कोई एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शंस है क्या, लोग रह रहे हैं क्या, रास्ते में कोई नदी है क्या, वहाँ ज़मीन कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये सारी चीज़ सोच के फिर मैं अगर रास्ता जब बनाना शुरुआत करता हूँ तो मुझे मालूम है क्या क्या चीज़ें मुझे लगती है. अगर ये बिना सोचे मैं शुरू कर दूँ तो कुछ दूर तक जाऊँगा, पता चलेगा कि बाद में वहाँ बीच में कुछ घर वगैरह है और वो लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं है. फिर मैं क्या करूँगा? आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है. मुझे अभी ये रिलेट होता है कि कई बार हमारे शहरों में जो हम देखते हैं ना कि अभी लोगों के घर बने हुए हैं, अब यहाँ से जो है मेट्रो निकलेगी, अब उनके घर तोड़ेंगे, बिजनेस तोड़ेंगे. इट मीन्स दैट दे हैव नॉट डन द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग. करेक्ट. नाउ मैंने कहा जैसे कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में 3 चीजें होती है, थिंक बिग, थिंक डीप एंड थिंक लॉन्ग. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए किस तरह से ये चीज की जरूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बहुत बार क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है एंड सडनली ही स्टार्ट्स विद दैट. आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों, कुछ महीनों, साल, उसको ध्यान में आता है कि वेयर ही हैज बीन फोकसिंग इज मच स्मॉलर अपॉर्चुनिटी, वो तो बहुत छोटा अवसर है, उससे कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी, राइट, जो कि वो मिस कर गया. क्यों मिस कर गया? इसकी वजह यह है कि उसने शुरुआत करने के पहले ही डिड नॉट थिंक बिग. एक पूरा जो, जैसे कि जिस तरह भी हमने रोड की बात की, रोड शुरू करने के पहले हम पूरा जो लैंडस्केप है उसकी पहले स्टडी करते हैं, एक बड़ा पिक्चर हम देखते हैं, उसके बाद में रोड बनाने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं. तो वो क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर बड़ा पिक्चर देखता नहीं है कि मैं किस मार्केट में हूँ, इस मार्केट में, राइट, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो सही तरह से अध्ययन नहीं करता है. एंड ही स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड देयरफॉर थिंकिंग बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज थिंकिंग डीप. थिंकिंग डीप मीन्स बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऊपर ही ऊपर जो दिखाई देता है उसके मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं, कई बार वो गलत जा सकता है. सो व्हाट रिक्वायर्स टू बी डन इज वन इज टू थिंक डीप. मतलब इस मार्केट में हु आर दी कॉम्पिटिटर्स, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, इस मार्केट का डायनेमिक्स क्या है, मतलब किस तरह का मार्केट साइकिल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कैसे बायर्स हैं, कैसे सेलर्स हैं, करेक्ट, कैसे बायर्स, कैसे सेलर्स है, कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, जो ग्राहक है उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये डीप जाके अध्ययन करना बहुत जरूरी है. आप देखिए कोई भी बड़ी जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं वो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी की बहुत उसका अध्ययन करते हैं, दे स्टडी अ लॉट. उसके बेस्ड ऑन दैट फिर वो एक एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. तो इसके लिए सेकंड पार्ट थिंकिंग डीप बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे तीसरा पार्ट जो है थिंकिंग लॉन्ग, मतलब दूर की सोचना. ये तो क्या हो जाता है, जो रास्ता दिखाई देता है उस पे हम चल पड़ते हैं, आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस वी रियलाइज अरे यहाँ तो रुकावट आ गई, आगे नहीं जा सकते. फिर क्या करते हम, फिर पीछे आते, फिर बिना सोचे दूसरा रास्ता लेते, फिर जब प्रॉब्लम आता है फिर पीछे आ जाते. तो होता क्या है, हम हर दिन मेहनत करते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं है. वी डोंट रीच एनीवेयर, वी कीप ऑन पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मैं ट्रेडमिल ऑर्गेनाइजेशंस बोलता हूँ. ट्रेडमिल, हाँ, ट्रेडमिल इसलिए लिए बिकॉज जस्ट लाइक ऑन ट्रेडमिल, आप ट्रेडमिल पे आप दौड़ते रहते हो लेकिन आप कहीं पहुंचते नहीं हो. उसी तरह से, राइट, अगर मैंने दूर की सोची नहीं हो, फॉर मैं कुछ अंतर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर कुछ करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, मेहनत ले रहा हूँ, कहीं पहुंचता नहीं हूँ. इसलिए बहुत जरूरी है एक दूर की सोचना, ताकि मैं पहले से सोचूं कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो ताकि जब प्रॉब्लम आए तो मैं अपना रास्ता नहीं बदलता हूँ, मैं उसका उपाय लेके चल रहा हूँ. मैं वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. मतलब रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तरीका बदल के भी काम किया जा सकता है अगर आपने शुरू में उसके बारे में सोचा है. जैसे कि सिंपल है,
मुझे कहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। हम्म, अभी समझो बारिश के दिन है, तो बीच में बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? तो उससे अच्छा है मैं पहले ही सोचूंगा अगर बारिश हो सकती है तो मैं क्या करता हूं, मैं छाता लेके निकलता हूं। तो छाता ये जो है ये मेरे आने वाले प्रॉब्लम का एक उपाय है जो मैं पहले से लेके चल रहा हूं। उसी तरह से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करने से आपका जो रिजल्ट या सक्सेस गारंटी नहीं होता, बट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। गुड। आई थिंक इट्स अ वेरी वाइड, बहुत मतलब बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। एंड अब मुझे भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। एंड एक चीज़ और मुझे आपसे बात करके समझ में आई कि भैया जो दिखता है वही नहीं बिकता है, उसके पीछे जब बहुत सारा काम होता है तो वो बिकता है। सही है। कमिंग अ स्टेप फर्दर, क्योंकि हम जो ऑडियंस को कैटर करते हैं वो या तो कॉरपोरेट सिटीजन है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, या तो वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने कुछ शुरू किया हुआ है, या तो एसएमईज है जो दे वांट टू स्केल अप। नाउ ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है या स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग है, इसको छोटे सेटअप में कैसे कर सकते हैं? लाइक आज बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, सो कॉल्ड एनी बिग कंपनी, नो, उनके पास पैसे हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग कर सकते हैं भाई। दे कैन हायर कि चलो भाई एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की एक टीम बना दी हमने, 10 लोग हैं। बट जिस कंपनी में गिन चुन के 2 3 4 लोग हैं, वो लोग कैसे करें इस चीज को? पहले तो मैंने जैसे कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है पहले ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आज क्या है, बहुत लोगों को इसके बारे में पहले मालूम ही नहीं है। तो आई वुड से द फर्स्ट स्टेप इज द अवेयरनेस। मालूम होना इस चीज का बहुत जरूरी है। आपके पास रिसोर्सेस है या नहीं है, आपके पास टीम है या नहीं है, ये बात सेकंड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटरप्रेन्योर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस बारे का इसके बारे में पता चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राइट, एक उस पर विश्वास होना चाहिए कि ये चीज काम कर सकती है। अभी एंटरप्रेन्योर का जो आउटलुक है, उनका नजरिया ही बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा, करेक्ट। तो उसको तो इस चीज की जरूरत ही नहीं लगती है, पहली बात ही है। हाँ, लेकिन ग्रो तो सबको करने का है, लेकिन वो जो उसके लिए जो सीखना, लर्निंग जरूरी है, उस पर एफर्ट्स नहीं लेते। तो मैं कहूँगा सबसे पहली चीज है कि एंटरप्रेन्योर को इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से उनका बिजनेस और बढ़ सकता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेके नहीं चलता है। अगर ये माइंडसेट हो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर का, तो फिर नेक्स्ट बात आती है रिसोर्सेज की और लोगों की। अभी आपने जो कंपनियों का नाम लिया, सारी बड़ी कंपनियां, वो इसके लिए नहीं सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस है सिर्फ, वो इनके लिए सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास वो सही माइंडसेट है, राइट। वो जानते हैं कि ये जरूरी चीज है। दूसरी बात ये है, देखो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दैट इट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस और एंड इफिशियंसी ऑफ योर रिसोर्सेस एंड इनपुट्स। मतलब क्या है? मतलब अगर आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हो तो आपका जो पैसा या जितना टाइम आप लगा रहे हो, राइट, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। वो क्योंकि जब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आप सारा एक बड़ा पिक्चर देखे, व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड यू हैव स्टार्टेड, राइट, यू आर मोर श्योर ऑफ सक्सेस। आपको मालूम है क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। तो इट इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस। नाउ टू एक्सप्लेन करने के लिए इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग है। एक जहाज होता है, बहुत बड़ा जहाज होता है, और जहाज बंद पड़ता है, इट्स नॉट वर्किंग। तो उसके जो ओनर्स होते हैं कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, बट द शिप डजंट स्टार्ट। तो उनको समझता है कोई बुजुर्ग आदमी है, राइट, वो शायद उसको ठीक कर सकता है। तो वो उन बुजुर्ग को बुलाते हैं। नाउ दैट पर्सन कम्स, वो जहाज को पूरा इंस्पेक्ट करते हैं। वो फिर अपने टूल बॉक्स में से एक केयरफुली एक टूल निकालते हैं, एक हैमर होता है विशिष्ट प्रकार का, एंड व्हाट इट डज, ही हैमर्स राइट ऑन द मशीन एट अ पर्टिकुलर पार्ट। वो मशीन पे एक जगह पे ठोकते हैं और मशीन शुरू हो जाता है।
जहाज स्टार्ट हो जाता है, सच ए ह्यूज जहाज वर्थ crores ऑफ रुपीज ऐसे ही बंद पड़ा था। अभी वो जो बुजुर्ग होते हैं वो ओनर को बिल भेजते हैं, वो बिल होता है $10,000। हाउ द ओनर्स आर शॉक्ड। वो बोलता है इस आदमी ने किया क्या, इसने तो सिर्फ आके एक जगह कहीं ठोका, उसका $10,000। तो वो उसको रिप्लाई करते हैं प्लीज सेंड अस द ब्रेकअप ऑफ द बिल, मतलब आपने जो चार्ज किया है उसका हमको ब्रेकअप भेजो। तो दैट इंटेलिजेंट ओल्ड मैन ही सेंड्स अ ब्रेकअप, और उनको फिर से दोबारा बिल भेजते हैं ब्रेकअप बता के। उसमें लिखते हैं राइट, हैमर करने के $2, नोइंग वेयर टू हैमर, मतलब कहाँ हैमर करने का, उसके $9,998। मतलब जो हैमर करने का था उसके $2 थे, और कहाँ हैमर करने का सारे चार्जेस उसके थे। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हो राइट, तो आपको ये पता होता है वेयर टू हैमर, मतलब आपको ये जो रिसोर्सेस है, जो मेहनत करनी है, वो आपको कहाँ पे लगानी चाहिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग है राइट, उसके लिए द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हेल्प्स यू टू नो वेयर टू हैमर। उसकी वजह से क्या होता है, आप क्योंकि आप जहां एफर्ट डाल रहे हो सही जगह पे डाल रहे हो, तो कम रिसोर्सेस में कम समय में आपके एफर्ट्स ज्यादा आते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट तो बड़ा मार्केट है, मार्केट के कई हिस्से जिसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, उसमें से कौन से सेगमेंट पे मुझे फोकस करना चाहिए, मतलब कौन से टारगेट सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। इसका अगर मैंने इफ आई स्टडीड फ्रॉम द बिगिनिंग कि भाई यहां मैं जाऊं तो मैक्सिमम बेनिफिट है। सेकंड, अगर उस टारगेट मार्केट का राइट अगर मैंने सही तरह से उसका अध्ययन किया हो, इफ आई स्टडीड दैट मार्केट प्रॉपरली, देन आई नो हु आर द कॉम्पिटिटर्स, मुझे पता है कि उनका व्हाट आर दे ऑफरिंग, करेक्ट, तो मुझे मालूम है कि उनके प्रोडक्ट में क्या कमी है, उनके सर्विसेज में क्या कमी है। सो आई नो वेयर व्हाट आई नीड टू ऑफर टू द मार्केट, जिसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं। तो मैं प्रोडक्ट जो मेरा सर्विसेज जो है मैं सही तरह से उसको मैं पोजीशन करता हूँ, राइट। सो व्हाट हैपेंस, माय टारगेट कस्टमर इज राइट, माय पोजीशन इज राइट, माय कम्युनिकेशन इज राइट, तो क्या होता है, चांसेस ऑफ सक्सेस ये ज्यादा होते हैं, राइट। सो दिस इज आई थिंक is the one of the biggest benefit of the strategic marketing. अभी इंटरनल टीम आपकी जो है, मेनी टाइम्स क्या होता है स्टार्टअप में, यू मे नॉट गेट मच एक्सपीरियंस और सीनियर लोग आपको नहीं मिल सकते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन आपके टीम में ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैपेबिलिटी शायद ना हो सकती है। तो बहुत बार क्या हो सकता है, एंटरप्रेन्योर को ही, द ओनर को ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओनर और द एंटरप्रेन्योर हैज टू होन हिज और हर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल, जो वो कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेके कर सकते हैं, राइट। वी डू एग्जीक्यूटिव कोचिंग, और हमने देखा है बहुत बार कि आफ्टर द एग्जीक्यूटिव कोचिंग द थिंकिंग कैपेसिटी, द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इम्प्रूव्स अ लॉट, राइट। तो वो खुद एग्जीक्यूटिव कोचिंग ले सकते हैं। दे कैन हायर अ कंसल्टेंट फ्रॉम आउटसाइड, राइट, दे कैन हायर एन एजेंसी फ्रॉम आउटसाइड who can give them the strategic direction or the strategic thinking, उस तरह से दे सकते हैं। So that's what I said कि आपके अगर टीम में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एंटरप्रेन्योर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर एंटरप्रेन्योर के पास उतना समय नहीं है, so they can go for outsourcing, आप बाहर से किसी कंसल्टेंट को, एजेंसी को आप हायर कर सकते हो, या फिर एंटरप्रेन्योर ही किसी बिजनेस कोच को बुला के उसका लॉन्ग टर्म कोचिंग कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे। ओके, गुड। सो भैया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर तबीयत ख़राब है तो घर में से डॉक्टर बनाओ, आप डॉक्टर बाहर से भी बुला सकते हो, इंजीनियर बाहर से भी बुला सकते हो, राइट, प्लम्बर बाहर से भी बुला सकते हो, वो सस्ता पड़ेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, वेल सेड। आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल वे से उसको आपने पुट अप किया। अच्छा मिलिंद, आपसे एक सवाल था, लाइक आप जब एक क्षेत्र में आप जब कदम रखते हैं तो आप उसी चीज़ से रिलेटेड लोगों को मिलते हैं, देन फिर उनकी सक्सेस स्टोरी सामने आती हैं, फेलियर स्टोरी भी सामने आती हैं। सो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं
दे आर ऑल क्वालिफाइड पीपल, लाइक जिन्होंने कॉर्पोरेट में बहुत सारा काम करा हुआ है, कितने मतलब किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करा है, जब वो अपने बिजनेस में आते हैं तो कई बार उनका बिकॉज सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कोई भी ये सोच के नहीं आता कि नहीं 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 आई हैव छोटी सी दुकान एंड जलेबी बनाऊंगा बेचूंगा और काम करूंगा, नहीं, ऐसा सोच के कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ एटलीस्ट एवरीबडी हैज गॉट बिग ड्रीम्स। अब वो बिग ड्रीम बिकॉज दे हैड बीन कंडीशनड इन सच अ एनवायरनमेंट एंड आई डोंट नो व्हाट गोज रॉन्ग, बट एक फिनोमिना है, सपोज किसी बंदे ने कोई कंपनी शुरू करी, उसमें टीम हायर करी, काम आया, शुरू हुआ, ठीक ठाक चला थोड़े दिन, फिर उसको आइडिया है कि चलो अब एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन के लिए अभी लोग और बढ़ा लिए, फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये लगने लगता है कि अब ये कॉमर्शियली वायबल नहीं है, या अब मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे बिजनेस से सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा है, जितना मैं पैसा डाल रहा हूँ उतना पैसा या उसका दोगुना पैसा या प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने लोन ले लिया, ठीक है, अभी नाउ लोन लेने के बाद फिर एक 6 महीने चले, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम हो गई, फिर अब क्या करें, फिर एक लोन ले लिया। तो ये जो लोन का जो ट्रैप है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का मतलब ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, अगर आप देखेंगे, यू मस्ट बी नोइंग मेनी पीपल स्टार्टअप्स में, एसएमईज में, लाइक बैंकर्स तो चाहते हैं, दे लव टू स्पेंड इन स्टार्टअप्स बिकॉज एक बार ही वो कस्टमर बन गया तो लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाता है उनका। सो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे बिजनेसेस के लिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग अपने करियर को छोड़कर इस इंडस्ट्री में या इस सेगमेंट में आए हैं, आई डोंट थिंक दैट उनको नो हाउस की कमी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ज्ञान भी है, बट उनके लिए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कैन यू रिलेट समथिंग और कैन यू सजेस्ट समथिंग ऑन दैट? ओके, आई हैव एक्चुअली ऑल्सो सीन क्या होता है बहुत बार, राइट, पीपल माइट हैव एक्सपीरियंस, ओके, दे माइट हैव वर्कड, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आप जब अपना बिजनेस शुरू करते हो तो बहुत बार क्या होता है, इक्वेशन चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होता है। आपने जहाँ काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल दे दूंगा, आई वर्क फॉर लॉन्ग टाइम विद वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी, ओके, फॉर लॉन्ग टाइम। नाउ वहाँ से व्हेन आई केम आउट राइट ऑन माय ओन, तो I had to understand the first thing that it's a different environment. वहाँ जितना बड़ा मेरा वो केबिन था, राइट, मेरा अकेले का, आज मेरा उतना ऑफिस है पूरा। नंबर 1, वहाँ आपको काफी सारी चीजें जो है जो आपको पता नहीं चलता, आपको बेस में ही मिल जाती है। लाखों रुपए के कंप्यूटर्स, 4G, 5G, 6G and so many other Gs. Correct. G sir भी. Yes, G sir भी आपके पास टीम होती है, राइट, करने के लिए सब कुछ, राइट। तो आपको एक रेडी बेस मिलता है, उसके बाद आप शुरू करते हो जब, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती है, राइट, बट दैट्स अ चॉइस। हाँ, दैट्स अ चॉइस, बट क्या होता है, बहुत लोग नहीं, वो उसको एडजस्ट करने के लिए, राइट, उनके हैबिट्स, थिंकिंग में भी उनको चेंज करना पड़ता है, राइट, बिकॉज यहाँ कैसा होता है, देयर वहाँ आप सैलरी ले रहे थे, यहाँ आप सैलरी दे रहे हो, तो सबसे बड़ा एक माइंडसेट में उनके बदलाव आना चाहिए। तो वो बहुत बार मैंने देखा है, आई हैव सीन कि वो माइंडसेट में लोगों के फर्क नहीं पड़ता है। वो आप अभी एम्प्लॉयर हो, तभी आप एम्प्लॉय थे, तो बहुत बार जिस तरह से वो एम्प्लॉय के टाइम सोचते थे उसी तरह से वो जो एम्प्लॉयर बन गए तब वो सोचते। जब आप एम्प्लॉय बनते हो तो आप काम करते हो, आपकी सैलरी आप लेते हो, किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन जब आप एम्प्लॉयर होते हो तो जो कुछ आपका इनकम आता है वो आपका अकेले का नहीं होता है। वो जो शेयरिंग करने का माइंडसेट होता है, डेवलप करना, और दूसरों शेयरिंग में डेवलप करना और शेयरिंग करने में एंजॉय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये माइंडसेट लोग, मैंने देखा है कि माइंडसेट पार्ट पे बोल रहा हूँ, ये डेवलप नहीं करते। तो इसके लिए इंस्पाइट ऑफ सब नोहाउ वगैरह सब कुछ है, फिर भी दे डू नॉट सक्सीड, नंबर 1। सेकेंड पार्ट अबाउट व्हाट हैपेंस इज दे स्टार्ट द बिजनेस, ओके, नाउ मेनी टाइम्स दे डू नॉट डू प्रॉपर, मैंने जैसे कहा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, मतलब बड़ा सोचना, राइट,
वो जो बिजनेस में थे वहां बड़ा सोचना अलग बात थी, इस बिजनेस में जहां वो जा रहे हैं वहां बड़ा सोचना ये अलग बात हो गई। एब्सोल्युटली, आई थिंक बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट में होते हो तो सिर्फ एक वर्टिकल में आपको बड़ा सोचना होता है, करेक्ट, प्रोबेबली मार्केटिंग, ट्रेनिंग और व्हाटएवर। करेक्ट, बट व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर देन वहाँ पे हर चीज में आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, और यू हैव टू थिंक बिग एंड लॉन्ग, बी इट फाइनेंस, बी इट अकाउंट्स, बी इट मार्केटिंग, सेल्स, रेवेन्यू, बिजनेस, एवरीथिंग। यहाँ आपको पूरे बिजनेस के लिए वो सोचना पड़ता है, एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए नहीं, आपको बिजनेस के लिए सोचना पड़ता है कि भैया ये द व्हाटएवर बिजनेस आई एम डूइंग, ओके, कि आगे चल के इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है, जैसे कहा कि एंटरप्रेन्योर लोग, नॉट सभी नहीं बट मैनी, वो सोच जो होती है, बहुत बार मैंने देखा है, फाइनेंशियल प्रेशर है कुछ भी, वो दूर का नहीं सोचते हैं। मैं आई हैव सीन मेनी टाइम्स दे गो फॉर शॉर्ट टर्म। I will tell you, I am working as a coach with one of the entrepreneur. Okay, जैसे मैंने कहा, I know an entrepreneur. Okay, short term thinking की बात कर रहा हूँ. There is huge amount of export business. Right, I have already network of people, right, who have been working in international markets. Now he has to do two things. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो उनका बिजनेस है, राइट, दे आर गेटिंग देयर पेमेंट इन टाइम बिकॉज नाउ दे आर रिलेशनशिप। नाउ इन इंटरनेशनल मार्केट इफ ही हैज टू गो, राइट, नाउ यू सी इफ ही मेक्स सम इन्वेस्टमेंट एंड टेक सम रिस्क, हिज बिजनेस कैन गो मेनी टाइम फोल्ड्स मोर। मतलब अभी कुछ करोड़ में है तो वो 100 करोड़ 100 टाइम जा सकता है, इतना ह्यूज पोटेंशियल है। बट उसके लिए दो चीज जरूरी है, एक, ही मे नॉट गेट द पेमेंट इमीडिएटली। अभी उसका कहना है नहीं, थोड़ा मैं इंटरनेशनल बिजनेस है, मैं एडवांस पेमेंट में ही मैं काम करूंगा। आई बीन ट्राइंग टू, मैं कोशिश कर रहा हूं कि राइट, टेक वन रिस्क, शुरू हो जाता है तो, बट थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म, मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपोर्ट करने के लिए प्लांट्स को कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए उनके। नाउ उस सर्टिफिकेशन के लिए प्लांट पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ यू सी, दिस इज वेयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स इन प्लेस। नाउ इफ ही डज दैट इन्वेस्टमेंट इन दी प्लांट, अगर वो आज जो कुछ है तो उनको वो सर्टिफिकेशन मिलेंगे और उनका जो प्रोडक्ट है कई देशों में क्वालिफाई हो जाएगा। पर ये जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होता है, मेरे ख्याल से ये दिस इज वन थिंग विच आई थिंक मेनी एंटरप्रेन्योर्स, फॉर देयर कुड बी वैलिड रीजन, जो नहीं करते। दूसरा, बहुत बार वो बड़ा भी नहीं सोचते, अपना जो एग्जिस्टिंग जो है चल रहा है, हाँ, दाल रोटी चल रहा है, वो चल रहा है, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेने का। तो मेरे ख्याल से वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी, हाँ, वो एक रिस्क लेते हैं, वो जब जॉब छोड़ के या कहीं शुरुआत करते हैं वो एक बार रिस्क लेते हैं, राइट, लेकिन बाद में एक सर्टन लेवल में आने के बाद जब वो वहाँ क्या कहते हैं, स्टैग्नेट हो जाते हैं उस लेवल पे, तो वहां जरूरत है कि और एक को छलांग लगाए और एक बार रिस्क ले, वो बहुत बार नहीं लेते। दैट इज द रीजन, बहुत बार मैंने देखा है कि वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। ओके, सो जैसा कि आई थिंक कुछ समय पहले हमने ये डिस्कस किया था, अगर आपने स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पहले से अपनाई है, ठीक है, या स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग आपने पहले से अपनाई है, तो उससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बहुत सारा एफर्ट्स बच सकता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। एंड टुडेज यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, अगर बचेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, उतने ही पैसों में, उतने ही समय में आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। तो या तो बच सकता है या रिटर्न्स बढ़ सकता है। एंड दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट बन गया, सर्विस बन गई, पैकेज बन गया, चलो बेचो, पैसा कमाओ। आई बिलीव दैट इफ़ यू वर्क और इफ़ यू एड्रेस अ नीड ऑफ योर मार्केट, पैसा तो आना ही है भाई। अगर कोई आप दुकान में कुछ जाते हो लेने के लिए, ठीक है, भले ही वो उधार में खाते में चला जाए, नो लाइक आज नहीं तो कल तो आपको पैसा देना ही है उसका। एक कैसे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि बहुत बार क्या होता है, वो आइडिया होना एक बात होती है, लेकिन उस आइडिया को एक पूरा एक पूरी तरह से सोच के, इंटीग्रेटेड जिसको बोलते हैं मार्केटिंग, हर एक एंगल से उसको सोच के, राइट, आप उसको लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो अभी एक राइट
एक इंटरनेशनल यू नो कॉफी चेन है डंकिन करके आपने सुना, डंकिन डोनट्स, राइट, डंकिन डोनट्स। अब आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब कैसे होना चाहिए। अभी डंकिन डोनट्स को उनको उनके कॉफी शॉप्स नहीं है, अभी उनको दे वांट टू लॉन्च देयर कॉफी शॉप्स। अभी ऑलरेडी जहाँ बड़े बड़े कॉफी के ब्रांड्स है, डंकिन इज नॉन, एक डोनट्स होता है, आपने देखा रहेगा, जो एक राउंड होता पाव है, जैसा होता है, उसके अंदर होल होता है, राइट। तो उनको अभी ये लॉन्च करना है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट थिंग, क्योंकि उनको अभी इस कॉफी शॉप के मार्केट में जाना है, तो पहले उन्होंने क्या किया, उनका जो डंकिन डोनट्स नाम था, वो नाम में से उन्होंने डोनट्स निकाल दिया। बिकॉज अगर आप कॉफी शॉप लॉन्च करते हो और डंकिन डोनट्स नाम रखते हो तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा, तो उन्होंने नाम में से डोनट्स निकाल दिया। सेकंड, अभी उन्होंने क्या किया, जहां वो राइट उनकी जो कॉफी शॉप्स उन्होंने सिलेक्ट मार्केट में डाले, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उस रूट पे जो बसेस चलती है, तो उन बसेस में उन्होंने जो आपके ये होते हैं ना, जो मशीन्स, जो क्या बोलते हैं, एयर प्यूरिफायर टाइप जो मशीन होते हैं, जो परफ्यूम्स स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते, उन्होंने क्या किया, फ्रेशनर्स जो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ऐसे उन बसेस में उन्होंने इंस्टॉल किए। और वो क्या करते हैं, जहां उनका कॉफी शॉप है उसके सामने पास में जो बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप में उसके पहले राइट वो रिलीज करते हैं कॉफी का स्मेल। तो वो क्या करते हैं, दूसरा नहीं, कॉफी का स्मेल वो स्प्रे करते हैं बस के अंदर, ऑटोमेटिक वो स्प्रे करता है। तो होता क्या है, उतरने के पहले लोगों को एक कॉफी पीने की एक इच्छा जागृत हो जाती है, अर्ज हो जाती है, तलब आ जाती है कॉफी की। और जैसे ही वो बस स्टॉप में से वो उतरते हैं, राइट, सामने उनको वो डंकिन का कॉफी शॉप दिखाई देता है, राइट। तो अभी देखो, ये होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। आप जो हर एक चीज, ऑब्वियसली वहां जाने के बाद में आप कुछ कितने टाइप की कॉफी ऑफर करते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर से क्या अलग ऑफर करते हो, क्या प्राइसिंग करते हो, हर एक चीज को सोचना पड़ता है उसमें, राइट। सो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने वही कहा कि आइडिया होना एक बात है, उसको पूरा एक पैकेज करके कस्टमर को ऑफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी एक नया अभी मेरे पास मोबाइल में हमने फोटो भी निकाले, एक नई चाय की चेन लॉन्च हुई जिसका नाम है चाय पे चर्चा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कहीं आउटलेट हो बॉम्बे में कुछ, जरूर विजिट करना। हर एक चीज में उनका जो लोगो है, वहां से लेके अंदर का इंटीरियर, वहां के जो सारे कटलरीज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, हर एक चीज उन्होंने इस तरह से की है कि आपको चाय के ठेले का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस टाइप का एटमॉस्फेयर उन्होंने वहां रिक्रिएट किया है। Awesome. और एक ये राजीव है, खाली कप रख देता है, भाई कॉफी शॉप ही रखा करो यार। गुड। आई थिंक ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताया है कि मेरे सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, नॉट माइन बट समबडी, लॉट मेनी, नॉट समबडी, डिजिटल मार्केटिंग। Now there are lot many companies come and they, or rather everybody thinks that digital is a space, we have to be there, this, that. If they know good, otherwise they hire some agency. Okay. Now 2 महीना उनके साथ काम करने के बाद फिर उनको लगता है नहीं इससे तो कुछ आ रहा नहीं है, धंधा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लीड्स नहीं आ रहे हैं, चलो बंद करते हैं। बट जिन भी लोगों को मैंने देखा है, मैंने ये पाया है कि जिस बंदे ने जिस लॉन्ग टर्म कंटिन्यू किया है, दे हैड एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लैरिटी कि मुझे डिजिटल एजेंसी से काम क्या करवाना है। करेक्ट। डिजिटल एजेंसी, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनको बिजनेस है। डिजिटल क्या हुआ है, लोगों को बस फैड है कि सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी कुछ डिजिटल करना है। लेकिन मुझे क्यों करना है, किस चीज के लिए करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, व्हाट इज इट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्लैरिटी नहीं। सो बॉस, if you are thinking of doing something or hiring somebody, the clarity सामने वाले में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में हो। बिकॉज अगर आप क्लियर नहीं होंगे ना, लोग आएंगे, मामू बनाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, पैसा आपका है, कंपनी आपकी है, विजन आपका है, सपना आपका है, लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपको लोगों के साथ काम करना है। सो हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड एंड देन यू पुट इट फॉरवर्ड। व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम मिलिंद, यू पुट इट फॉरवर्ड कि आपको क्या चाहिए। हैव अ डिफाइंड गोल कि मुझे
6 महीने में ये सारी चीज़ें चाहिए, एंड हैव फेथ इन दैट पर्सन और दैट एजेंसी. Great, superb. I think it's a very important lesson learned from Milind. It had been very focused, or rather strategic, to have a strategic thinker like Milind here. And जो मैंने आज के कन्वर्सेशन में समझा है, 2-3 चीज़ें जो मैं जस्ट टू समराइज द होल थिंग. भाई अगर बड़ा बनना है तो पहली चीज़ तो बड़ा सोचना पड़ेगा. आइडियाज़ का क्या है, सबको आते हैं, दिन में 3 आते हैं, लेकिन you have to get those ideas into a final perspective, or rather a big perspective, so that आप उस आइडिया को कहीं लेकर जा सको और उस आइडिया के साथ आप ट्रैवल कर सको. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैंने सीखी है, कॉज. वर्क फॉर अ कॉज, मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. डॉक्टर अगर आज ये सोच के बैठेगा कि मेरे को पैसा कमाना है, इसके लिए मुझे क्लिनिक खोलनी है, दैट डॉक्टर विल नेवर एवर सस्टेन, दे विल नेवर अर्न मनी. बट अगर कोई ये सोच के करता है कि मुझे मेरा काम है, ये मेरा काम है, मेरा पैशन है, मुझे अपने कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, पेशेंट को सर्व करना है, पेशेंट ठीक होंगे, एनीवेज पैसा विल कम. So thank you, Milind. Thank you so much for being here and like enlightening us for the subject, complex subject like strategic thinking. I hope it is not as complex now. Thank you so much. Pleasure. Thank you very much. Thanks a lot. Guys, hope you liked this conversation and some of the thoughts which I shared. If you like it, right, do click on the like button as well as share this video with others. Thank you very much.